Stand by. Welcome back, everyone. We are live after we are back from a short break, and now we are having our next team. And I think it's a bit familiar. Yes. I think give them a call. It's Umar Aftab and Zishan. And they're going to present their project now, so bring it on. Yes, bring it on. There you go. Thank you so much. Assalamu alaikum. My name is Umar Aftab, and with me is my group partner Zishan Zahid. So we are here to actually present our Imagine Ka project, that is the doctor assistant system, supervised by one of the senior faculty member at Lahore Ghazian University, Mr. Zulkifil Hassan. So here's the introduction. So as we know that the digital image processing and artificial intelligence are actually one of the most implemented branches right now, with numerous number of applications throughout the world. So the involvement actually of medical imaging and artificial intelligence, actually it's been a very long time. So we see medical imaging involved in actually monitoring of patients or maybe diagnostic of various diseases, and artificial intelligence is being used in various surgical procedures carried out by very high-tech machinery robots that are actually supervised by the doctors. So inspiring by that, our proposed methodology is actually a collaboration of both of these fields. So the actually methodology is named as doctor assistant system, or uske do parts actually. The first is actually a leukemia detector software. Leukemia is actually biological term for blood cancer. So this is actually the first part. The second is the doctor assistant. The doctor assistant would actually do that the patient coming, first time at the hospital, the vital signs of the patient would be added in the software, and the software will actually calculate the health severity of the patient as how severe that patient is. Regarding that, the matching of actually vital signs of the disease that patient might having, so actually it would match the vital signs that are being carried by the patient to that disease, so it would actually refer them a doctor relative to which disease is actually having. And we're also having pretty queue system that hospitals actually it would give the priority to the patient as how severe it is. So the main part is that the project is actually not for like common use. Actually, it being carried out, specially designed for doctors, pathologists, and other medical staff. Actually, they know actually the procedure of diagnostics, the medical terms and behavior. So it's actually not for public use. Further, the problem statement. When we had the project, we actually think of many problem statements. So first is actually the current, the leukemia detection is actually carried out by pathologists, actually very manual method. They're just, slide, microscopic images, slides ली जाती हैं, उसके ऊपर वो उसको view करते हैं और उससे actually वो diagnose करते हैं. So human error भी इसमें involve हो जाता है. And lack of human error actually it can cause false diagnostic of some disease. उसके बाद जो diagnostic reports actually takes many days, actually 3 to 4 days to come, and actually then the patient can be diagnosed with some disease. So it's actually very slow procedure. Further, the patients actually that arrive at the hospital first time, they don't know actually which doctor to consult. And there's actually huge mob of patients कि जो doctors के office के बाहर बैठे होते हैं, and they have to get themselves examined by the doctor. And उसमें critical patients भी होते हैं, so actually they have to suffer because they need medical assistance as soon as possible. The scope actually provides a solution. It would actually provide assistance and reduce error to some extent within the doctors, and diminish the traditional queue systems we have at hospitals or walk-in clinics to provide aid to the critical patients. Further, to promote efficiency, accuracy, and speed while providing assistance to doctor as well as the patient. And the main objective is to construct an autonomous and intelligent systems. So, further, these are actually the tools and technology we are using. For the software construction, we are using MATLABs, and the hardware products we would be needing like PCs, laptops, or maybe printers. The technologies we are using is medical imaging, data mining, and deep learning. So, this is a software process.
and design methodology. So my partner would explain that. Assalamu alaikum. Myself Zishan Zahid. Now I will describe the flow chart of blood cancer. Firstly, हमारा कि सॉफ्टवेयर हमारा वर्क कैसे करेगा. फर्स्टली एक वॉइस डाटा होगा, हम उसको अपने सॉफ्टवेयर को जो ब्लड कैंसर की पेशेंट की ब्लड कैंसर की इमेजेस होंगी, माइक्रोस्कोपिक इमेजेस होंगी, वो हम अपने सॉफ्टवेयर में एंटर करेंगे. देन सॉफ्टवेयर उस पर प्री प्रोसेसिंग करेगा. देन सॉफ्टवेयर ही उस पर डीप लर्निंग यूज़ करेगा. डीप लर्निंग सच एज के उस सेगमेंटेशन करेगा उस पिक्चर्स माइक्रोस्कोपिक इमेजेस की, और उसके सेट्स बना के क्लासीफाई करेगा कि इसमें कौन सा ब्लड कैंसर मीन्स उसे कि ब्लड कैंसर है या नहीं है. देन वैलिडेशन करेगा कि कितने के % इसको ब्लड कैंसर है. देन टेस्टिंग करेगा और एक रिपोर्ट जनरेट कर देगा हमारा सॉफ्टवेयर, जो हमारा डॉक्टर होगा उसको प्रोवाइड कर दी जाएगी. नेक्स्ट स्टेप ये जो डॉक्टर असिस्टेंट जो हमारे प्रोजेक्ट का सेकंड पार्ट है कि डॉक्टर असिस्टेंट्स फ्लो चार्ट, ये भी इसमें भी सेम सिचुएशन होगी कि एक वॉइस डाटा होगा. हम जो मतलब कि पेशेंट के लिए जो मेडिकल स्टाफ होगा वो वाइट साइंस चेक करेगा पेशेंट्स के, जैसे ब्लड प्रेशर हो गया, शुगर हो गया, पेन हो गई, सब कुछ बाहरी मेडिकल स्टाफ चेक करेगा. वो रिपोर्ट आगे फॉरवर्ड करेगी. एक वॉइस डाटा होगा. देन सॉफ्टवेयर हमारा चेक करेगा रिक्वायरमेंट एनालिसिस. अगर तो वो पेशेंट पहले भी चेक करवा चुका है, उन दोनों को कंबाइन करके चेक किया जाएगा. देन हमने फजी लॉजिक यूज़ किया और न्यूरो नेटवर्क यूज़ किया. इनका एक हाइब्रिड फॉर्म अप्रोच यूज़ किया. वो इन दोनों डाटास को कलेक्ट करके एक आउटपुट शो करेगा. देन आउटपुट वो होगी, वो डिसीजन लेगी और उस हिसाब से एक टोकन जनरेट हो जाएगा कि इस पेशेंट को किस डॉक्टर के पास जाना है और किस प्रायोरिटी वाइज जाना है. देन एक टोकन जनरेट हो जाएगा. नाउ हमारा एक आर्किटेक्चर डायग्राम है जिसमें हमने जो हमारे दोनों पार्ट्स हैं उसको जो लास्ट में हमने शो करवाना है. एक पेशेंट है, वो हॉस्पिटल आता है, हॉस्पिटल आगे एक मेडिकल स्टाफ के पास आएगा, अपने वाइटल साइंस चेक करवाएगा. यहाँ पे हमने सॉफ्टवेयर यूज किया हुआ जो चेक करेगा कि इसको किस डॉक्टर के पास जाना चाहिए, सारी स्टेटमेंट्स चेक करके देन डिसीजन लेगा और एक टोकन जनरेट कर देगा. पेशेंट इसी तरह डॉक्टर के पास जाएगा, डॉक्टर चेक करेगा, चेकअप करेगा. अगर तो नॉर्मल कंडीशन में मेडिसिन देगा और दे देगा, फ्री कर देगा. अदरवाइज अगर उसको लगता है कि इसको कैंसर है, जैसे अभी हम कैंसर के लिए काम करें, ब्लड कैंसर के लिए, वो चेक अगर उसको लगता है कैंसर है, वो उसका हेल्थ टेस्ट करेगा, ब्लड सैंपल लेगा, ब्लड स्टेनिंग करेगा, स्कैनिंग होगी, उसके बाद एक माइक्रोस्कोपिक इमेजेस क्रिएट हो जाएगी, वो हमारे सॉफ्टवेयर को दी जाएगी. फिर सॉफ्टवेयर देन वही वर्क करेगा, चेक करेगा और एक रिपोर्ट जनरेट कर देगा. वो रिपोर्ट वापस दोबारा मेडिकल स्टाफ पे जाएगी. मेडिकल स्टाफ फिर डिसीजन लेगा, उसके लिए पेशेंट के लिए डॉक्टर एक टोकन जनरेट हो जाएगा. देन वो चेक करेगा और दोबारा उसको डॉक्टर प्रेफर कर दिया जाएगा. उसके बाद वैसे ही इसी तरह ये सिस्टम चलेगा. नाउ ये एक्चुअली हमारा फ्यूचर वर्क है दैट वी आर अबाउट टू डू. फर्स्ट इज एक्चुअली हम सिर्फ ल्यूकीमिया के लिए काम करें कि सिर्फ माइक्रोस्कोपिक इमेज से ल्यूकीमिया डिटेक्ट कर पाएगा. सो वी वांट कि हम इसको मोर डिफरेंट टाइप ऑफ कैंसर्स के लिए हम इसको इंट्रोड्यूस करें, लाइक ब्रेस्ट कैंसर, डिफरेंट ब्रेन ट्यूमर्स के लिए. फर्दर इसकी एक्यूरेसी इंप्रूव करना, वर्किंग इंप्रूव करना, मोर फीचर्स एक्चुअली इसमें ऐड करना इज वन ऑफ आवर ऑब्जेक्टिव फ्यूचर वर्क. एंड कंस्ट्रक्ट अ बिजनेस मॉडल. ये डॉक्टर्स वगैरह. हाँ, राइट नाउ अभी हमने एक फ्यूचर मॉडल नहीं, वी आर एक्चुअली नॉट कंसिस्टिंग इट एज अ बिजनेस मॉडल, क्योंकि अंटिल वी वांट कि इतना एक्यूरेट हो सो दैट वी कैन एक्चुअली मेक अ बिजनेस मॉडल और इसको हम सेल कर सकें टू डिफरेंट हॉस्पिटल. सो वी हैव एक्चुअली 40% फजी लॉजिक का ऑलमोस्ट काम डन है. वो हमारा होगा. कोई मॉकअप सॉर्ट ऑफ या कुछ आपने प्लान किया, कुछ दिखाने के लिए है डेमोन्स्ट्रेशन? अभी नहीं, एक्चुअली वी हैड सम ग्लिट्स, तो उसका सम वो नहीं लेके आ पाए. अभी आगे हैं स्लाइड. अच्छा, सो ज़रा बैक जाएं आर्किटेक्चर पे. अच्छा, ये बताएं कि आपने कहा जहाँ पे आपने मशीन लर्निंग वगैरह मेंशन किया. जी हाँ, तो इस स्लाइड पे मशीन लर्निंग है, डीप लर्निंग. डीप लर्निंग में मशीन लर्निंग नहीं कहा आपने, डाटा माइनिंग वगैरह लिखा हुआ था. उस स्लाइड पे जाएं ज़रा, दिखाएं ज़रा. अच्छा, अब जहाँ तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है, मशीन लर्निंग रिक्वायर्स यू टू ट्रेन मॉडल्स, और ट्रेनिंग जो होती है वो सुपरवाइज भी होती है और अनसुपरवाइज लर्निंग भी होती है. ठीक है. अब इस सिस्टम में एक असम्पशन आपकी ये है कि इट्स ऑलरेडी ट्रेंड,
राइट ट्रेनिंग बहुत सारे जो कैंसर वाला पार्ट है इट्स नॉट येट बट जो डॉक्टर असिस्टेंट वाला है दैट इज एक्चुअली टू एक्चुअली रेकमेंड समथिंग यू नीड टू ट्रेन डेटा सेट्स बनाए ना उसके लिए तो ट्रेनिंग के लिए आपने क्या सोचा है रियल डाटा होगा क्या होगा एक्चुअली रियल डेटा यूज करना है फॉर ट्रेनिंग पर्पसेस हम एक्चुअली डेटा उस डाटा रियल डाटा के लिए हैव यू कंसल्टेड एनीबॉडी डॉक्टर्स हम काफी डॉक्टर्स नर्स 4 and 5 डॉक्टर से कंसर्न कर चुके हैं हम लोग और सेट ले चुके हैं डेटा सेट ले चुके हैं अच्छा अब मैं थोड़ा सा फेमिलियर हूँ इस डोमेन से जो ये प्रोजेक्ट है इसमें तकरीबन 80% जो काम है उसको इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड्स और प्रैक्टिस मैनेजमेंट सिस्टम से हैंडल किया जाता है उसको EMR भी कहते हैं EMS भी कहते हैं PMS भी कहते हैं और ये बड़े वाइडली अवेलेबल हैं और इनमें से बहुत सारे ओपन सोर्स भी हैं ठीक है सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड 2 थिंग्स पहली चीज़ कि आपका यहाँ पे कंपैरेटिव एडवांटेज क्या है ठीक है दूसरा आपने कहा कि रिपोर्ट बड़ी देर से जनरेट होती है तो आपने उस प्रोसेस को फास्ट करने के लिए इसमें कौन सा पार्ट है जो उसको तेज कर रहा है ठीक है सर ठीक है दोनों क्वेश्चन का 1 by 1 आंसर है ठीक है जो आपका सेकंड क्वेश्चन आई वुड आंसर दैट फर्स्ट कि जो एक्चुअली जो पैथोलॉजिस्ट हैं द कैंसर डॉक्टर्स वो मैनुअली ब्लड कैंसर डिटेक्ट करता है वो एक स्लाइड के ऊपर थोड़ा सा ब्लड उसकी सैंपल स्टेनिंग स्क्रीनिंग ये मेडिकल टर्म्स है उसके बाद स्लाइड को व्यू करता है उससे वो डायग्नोज करता है एक्चुअली देयर इज नथिंग एज अ सॉफ्टवेयर और एटोनमस थिंग कि कोई एक वो मेडिकल जनरेट हो देयर हैव बीन अ हार्डवेयर डिवाइस राइट नाउ जिन डॉक्टर को हमने कंसल्ट किया है ही इज प्रोफेसर डॉक्टर नासिर फ्रॉम वॉरिक यूनिवर्सिटी तो ही इज एक्चुअली वर्किंग ऑन अ सिस्टम एक्चुअली दैट वुड जनरेट द माइक्रोस्कोपिक इमेज तो उसमें एक्चुअली अभी हमें थोड़ी डिपेंडेंसी है कि हमें वो माइक्रोस्कोपिक इमेज लेनी पड़ेगी और फिर वो सिस्टम में डाली जाएगी सो राइट नाउ बस ये एक्चुअली हमारा फर्क है ही इज ऑल्सो वर्किंग ऑन द सेम डोमेन तो वो उनके पास एक्चुअली डिवाइस ही हैव कंस्ट्रक्टेड डिवाइस जो एक्चुअली माइक्रोस्कोपिक इमेजेस वो खुद जनरेट कर देगी रिगार्डिंग टू द ब्लड सैंपल तो उसमें स्टेनिंग और सैम्पलिंग वो केमिकल्स कुछ भी नहीं करना पड़ेगा दे वुड यूज फिल्टर्स एक्चुअली इंस्टेड ऑफ दैट और जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है इसको तेज करने का तो एक तो वही कि जो इस वक्त एक पैथोलॉजिस्ट नॉर्मली 10 टू डायग्राम पे आ जाते हैं हाँ सो जरा एक पेशेंट के पर्सपेक्टिव से जरा आप बताएं कि एक पेशेंट आया हॉस्पिटल ही है ये क्लिनिक हॉस्पिटल है तो वो आया तो उसके बाद क्या क्या स्टेप्स हैं उनमें से कौन सा स्टेप मैनुअल है और कौन सा स्टेप ऑटोमेटेड है ठीक है जस्ट स्टेप्स फिर टेक्निकल लिंगो उसमें से ड्रॉप कर दें जस्ट आम आदमी के लिए जो फर्स्ट स्टेप है ना जो एक्चुअली हम मेडिकल स्टाफ हमें चाहिए जो उसके वाइटल साइंस कैलकुलेट करे क्योंकि हार्डवेयर डिवाइसेस भी ऐसी मौजूद है सेंसर है डिफरेंट जो ब्लड प्रेशर एंड पल्स रेट पा सकते हैं पर वी नीड एक्चुअली देयर मोर वेरिएबल्स जिससे कोई भी डॉक्टर डायग्नोज करता है उसमें नेल्स भी आते हैं स्लीप डिसऑर्डर आता है हाउ इज ईटिंग तो एक्चुअली ये पेशेंट ही एक्चुअली पेन देयर इज नथिंग एक्चुअली कंस्ट्रक्टेड टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पेन नहीं समझता so there would be actually something that rate your pain from 1 to 10 are you having pain in here are you having pain तो ये actually हम जो medical staff and nurses they would enter the data तो ये actually हमारा एक manual process होगा और उधर से जो microscopic images है वो भी actually pathologist ही actually करेंगे so patient आया एक नर्स ने उसके वाइटल्स ले लिए ठीक है वाइटल्स आपकी एंट्री हो गई ठीक है सिस्टम में आ गया आपके यहाँ तक तो इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड है यहाँ से डॉक्टर को आगे फॉरवर्ड कर दी जाएगी सारी डिटेल पहले यहाँ पे था या नहीं था वो आपको हिस्ट्री आ गई उसकी मेडिकल ठीक है ना ये तो मैनेजमेंट सिस्टम वाला पार्ट है आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द एआई पार्ट है कि उसकी हेल्थ सेवेरिटी कैलकुलेट करेगा एंड इट वुड एक्चुअली उसके अभी हम 3 बीमारियों के लिए काम करें फॉर हार्ट डिजीजेस फॉर कैंसर एंड लंग तो अगर उस पेशेंट को उन तीनों में से कोई भी एक्सपेक्शन कोई प्रोबेबिलिटी है कि उसको उन तीनों में से कोई बीमारी हो सकती है तो देन एक्चुअली इट वुड जनरेट कि उसको आएगा कि ही शुड गो टू द हार्ट स्पेशलिस्ट लेकिन इसमें एक थोड़ी सी चीज है ना जी कि इसमें एक बड़ी असम्पशन है कि सिस्टम करेक्टली ये चीज प्रेडिक्ट कर सकता है ठीक है अब अगर डीप लर्निंग के बारे में थोड़ा सा आप देखें तो जो जिस तरह से आपने मॉडल को सिखाया है सारी डिपेंडेंसी उसके ऊपर है कि वो कितना एक्यूरेट प्रेडिक्ट करेगा तो आई एम मोर इंटरेस्टेड इन नोइंग कि व्हाट आर योर प्लान्स टू एक्चुअली build that model how many doctors have you consulted are they providing you real data of the patients or not because it's confidential people don't do that उसकी बेस के ऊपर जो आप मॉडल बनाएंगे उसके बाद जो आउटपुट जनरेट करेगा
to match that with the model and come up with an accuracy figure, ठीक है ना, actual test जो होता है automated कि this is correct 60% correct prediction. So it takes time because machine learning models take some time to learn things, right? Yes. So उसके ऊपर आपने क्या सोचा है उसके बारे में? सर हमने एक्चुअली जो फर्स्ट था पीनम एक कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट इन फैसलाबाद, पहले वहाँ पे कैंसर रिसर्च डॉक्टर हमने सबसे पहले उनसे मिले. ही एक्चुअली टोल्ड अस द मेडिकल जो टर्म है, किस तरह वो एक मेडिकल प्रोसीजर जिससे वो लुकीमिया डिटेक्ट होता है एक्चुअली, उसको हमने फर्स्ट एक ऑटोनमस करने की अटेम्प्ट की यूजिंग मैटलैब एंड इमेज. और जो ट्रेन कर रहे हैं हम एक्चुअली डेटा सेट से कर रहे हैं. एंड यू आर राइट कि जो डिफरेंट हॉस्पिटल क्लिनिक्स हैं दे डोंट एक्चुअली लाइक टू शेयर देयर डेटा बिकॉज कॉन्फिडेंशियल. सो वी फर्दर यूजिंग डेटा सेट्स एक्चुअली और माइक्रोस्कोपी इमेजेस यूज कर रहे हैं हम उसको ट्रेन करने के लिए. वी हैव कंसल्टेड 2-3 हॉस्पिटल्स, मे बी दे वुड गिव अस. अब आपके पास कितने माइक्रोस्कोपिक वी हैव लाइक मोर देन 50 राइट नाउ बी, बट वी नीड मोर. मतलब नॉर्मल ब्लड की हमारे पास पड़ी हुई है वो 200 प्लस नॉर्मल ब्लड की. वी नीड एक्चुअली जिसमें लुकीमिया, ये जो पिक्चर ब्लड कैंसर हो जिसमें है वो फिर काफी शॉर्ट है टू ट्रेन अ मॉडल. यस एक्चुअली अभी जो डेटा सेट यूज करें दैट इज पर्सपेक्टिव 500%. उनका वेट, नॉर्मल वेट, हेल्थ, हाइट, जो बेसिक डायग्नोस्टिक में ये तो वाइटल्स है ना, ये तो आ गए. क्वेश्चन ये है कि कैन यू गिव अस अ नंबर के इतने नंबर के ऊपर हमारा मॉडल ट्रेन हो जाएगा? वी जस्ट वांट टू चेक द डेप्थ ऑफ द वाटर हियर. अभी जो हमारे एक्चुअली एग्जाम्पशन है वी वुड एक्चुअली मे बी नीड 300 to 400 पिक्चर्स एट लीस्ट. आई थिंक यू आर too low. Actually there are, the thing is that there are 5 types of white blood cells. जो उनमें से किसी में भी leukemia होगा तो actually it would be considered a leukemia. We're not working actually with 5 of. अच्छा मैं इसके दूसरी साइड पे आ रहा था. Let's go to that. This one I've covered. Are you trying to solve a research problem? Actually yes. So it's not an implementation you are going for. It's a doctor who is saying that he would get a paper published. Which may or may not say this the thing that either you are building an algorithm for something that you know that you can build an algorithm. Yes. Or you are trying to solve a problem of which solution even you do not know whether it would suffix or not. No, we are actually trying to construct an algorithm. हमने बहुत research की, पढ़ा, medical research. जब आप medical की term पे बात करते हैं and you are talking about something as sensitive as cancer. Cancer. Yes. You cannot just throw that we are going to build a system. This has to be vetted by the industry of doctors. And there should either be a publication that you throw as us कि ये एक publication है which is proposing a model that we are building. Or you just say that we are trying to get a research paper published. It has nothing to do with this entire flow. Which one is correct? Actually both. Actually both cannot be correct simultaneously. We are also writing a paper on that. ठीक है. How we are going to use. हमने इस पे दूसरे papers देखे हैं and people have actually tried before us case with autonomous system with leukemia, blood cancer. We have tumors, breast cancer. ऐसे. I see is one or the other implementation in every Imagine Cup. Either it's the retina, either it's blood or any other sample. But the problem is why do the systems don't go live? मैं सिर्फ समझाना ये चाह रहा हूँ कि either you solve a classical research problem कि जिसमें आप कहें कि वी आर प्रपोजिंग अ सोल्यूशन जिसमें ऑटोमेटिकली अगर ल्यूकेमिया तो वो उसको सॉर्ट आउट कर देगा. द एक्यूरेसी रेट वुड बी समथिंग अराउंड 60 to 90% एंड द इंडस्ट्री वुड देन वेट इट. और यू से कि मैं ये रिसर्च पेपर पब्लिकेशंस आए फ्रॉम वन ऑफ द डॉक्टर्स वेदर लोकल और अब्रॉड, उन्होंने ये एल्गोरिथम सजेस्ट किया हुआ है और मैं उसको बिल्ड कर रहा हूँ. विच वन इज करेक्ट? We are building an algorithm of our own, so we are not using. Throw me something of that algorithm. Sir, जो first है ना जो actually doctor assistant भी use करे वो actually module है artificial neural network of fuzzy logic. It's actually combination. जो first उसमें use होगा actually the age, weight, height and gender. That will be calculated by the neural one. उसके बाद fuzzy काम करेगी क्योंकि actually बीमारियों के लिए we obviously need उनका weight drop हो जाता है, कुछ में weight gain हो जाता है. Nothing to do with this microscopic image. The microscopic image actually we will train neural network actually. मैं bottom line one फिक्र में conclude करना चाह रहा हूँ. Do you have an algorithm that you can tell me कि मैं ये देखें it looks so good कि I say कि मैं आसमानी बिजली कैद करना चाह रहा हूँ, भला होगा दुनिया का. Fine. Are you trying to solve a problem of which solution even you do not know right now? Actually, a bit yes. Okay, fine. Are you aware of NP complete problems? So how long will it take to complete?
we are actually working on the main part was के data collect करना. That was the main part. For construction we would not require very much time. Approximately 1 month के अंदर आपको लगता है कि हो जाएगा? 1 month से भी we will try to उससे भी कम time में हम इसको build करें. Secondly, आपने simultaneously कहा कि जी हम research paper भी लिख रहे हैं, तो shouldn't it be like medical guys जो इसको लिख रहे होंगे या जो doctors हैं? Actually इसके ऊपर बहुत सारे research paper हैं जो computer scientists ने लिखे हैं. अच्छा. So we actually had seen quite much. So actually the idea was inspired. कि हमने फिर जब we had an idea, उसके बाद हमने देखा कि we should probably see कि इस पे क्या काम हुआ. So rather कुछ बना कुछ नहीं, they actually only researches actually. So we actually want to make our own something. कि कोई एक attempt करना चाहते हैं हम कि we should build something regarding that. ठीक है. One of the things Afif mentioned, he named it because you threw fuzzy logic, Yes. but not a lot of people talk about. Yes. He said, do you know of an NP complete problem? Go back, see it, and the bottom line is there are some problems out there which just cannot be solved. Okay. And the classical definition is no matter how many intelligent people spend how many hours on that, it just cannot be solved. So please look into that pitfall कि आप उसमें trap ना हो जाए. बाकी I'm fine. Anything? No, thank you. Thank you. Thank you. Okay, so that was actually terrific, boys. That was good. That was actually good. Don't you think, Mariam Babar? I agree with you, Duranayab. Umar Aftab is quite a talented person and it's surprising. That was amazing. Yes. Now, before starting and coming up with the next team, I would like to call A beautiful guest here. because she's going to come on the stage and we'll be asking her a few questions Yes, regarding yes. Microsoft Imagine Cup 2019. Hello, welcome, ma'am. Thank you so much. So, what are you feeling here? Well, I'm really excited that it's a very good platform for all Pakistanis here, especially for the students and the youth, that yes, that there's a technology advancement platform here, and especially Microsoft is here. So it's a big congratulations for the Lahore Guys and University. And what would be your message for the students? Well, I'll tell you that now the coming future is about the technology. And if we'll not do advancement in technology, we'll be lacking behind. And Pakistan right now is 131 country out of 141 in the Innovation Index. And we have always been the followers. Why to wear a feather of some other country? Why not to wear the feather of our own country? So we have brains here, we have talent here. We should utilize it in a very proper way. Thank you so much. So that was Yes. a beautiful lady Yes, with us. ladies and Saima Murtaza was with us right now. And now coming back to the team members we have. Now this team sounds a little interesting. Power of Girls. Power of Girls. So we're going to be asking them about their project now. So here you go. Here you go. Best of luck for your project. अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। माई सेल्फ मैमूना मुनीर एंड माई ग्रुप मेंबर इज मिस हफ्सा तारिक। माई सेल्फ मैमूना मुनीर एंड माई ग्रुप मेंबर इज मिस हफ्सा तारिक। हमारा ग्रुप, हमारा जो प्रोजेक्ट है उसका नाम है स्पॉटिफाई सिस्टम। स्पॉटिफाई सिस्टम स्पॉटिफाई सिस्टम इज़ एक जो है ये वेब बेस्ड सिस्टम है जो कि यूनिवर्सिटी के लिए ही है, जिसमें हम टीचर, स्टूडेंट और एडमिन को आपस में कम्युनिकेट करवा रहे हैं, कम्युनिकेशन करवा रहे हैं। जो कम्युनिकेशन हम इनके दरमियान करवा रहे हैं वो हम बाय कार्ट मेथड करवा रहे हैं, जिसमें हम क्या करेंगे, जो होगा स्टूडेंट होंगे, टीचर्स होंगे, ये सब क्या करेंगे आपस में सेलिंग एंड परचेजिंग करेंगे, जिसमें क्या हो सकता है स्टूडेंट बुक्स और नोट्स सेल्स कर सकता है और टीचर ओल्ड और न्यू थिंग्स ये सेल कर सकता है और परचेज भी कर सकता है। सॉरी टू कट यू ऑफ, टीचर्स और स्टूडेंट सेलिंग परचेजिंग क्यों करेंगे? क्योंकि ये सिस्टम ही हम एक वेबसाइट बना रहे हैं ऐसी यूनिवर्सिटी बेस्ड। आपने इसके लिए नीड कम्युनिकेशन आपस में स्टूडेंट की, एडमिन की और टीचर्स की हम कम्युनिकेशन करवाने के लिए ये एक वेबसाइट बना रहे हैं। स्टूडेंट्स क्या परचेज करेंगे टीचर से? स्टूडेंट बुक्स, जैसे ओल्ड बुक्स होगी, टीचर से ओल्ड बुक्स परचेज करेंगे जी, नोट्स
बुक्स टीचर्स के थ्रू। क्या ये अलाउ है? जी, बुक्स अपनी भेज सकते हैं? क्योंकि ये एक पहले ये सिस्टम हमारी यूनिवर्सिटी में नहीं चल रहा, तो इसलिए हमने ये बनाया वेबसाइट। ओके जी, चले आगे चलते। उसके अलावा इसमें प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये होगी कि देखें जिस तरह से ये एक आर्मी की यूनिवर्सिटी है, इसमें शहादा के भी बच्चे आते हैं, डिफरेंट कैटेगरीज के, डिफरेंट बैकवर्ड एरिया से स्टूडेंट्स यहाँ पे आते हैं जिनको कुछ नहीं पता होता कि टीचर के साथ हम कैसे कम्युनिकेट कर सकते हैं, किस तरीके से। ये सारी चीज़ें जो थी इनको हम स्टूडेंट की कम्युनिकेशन करवाने के लिए टीचर के साथ इसको हमने, जैसे स्टूडेंट्स होते हैं वो अब जैसे बुक्स हो गई परचेज नहीं कर सकते, कुछ ऐसे पुअर स्टूडेंट्स होते हैं, तो उनके लिए हमने ये सिस्टम एक बनाया। उसके अलावा इसमें डिफरेंट जैसे आ जाएंगे स्टूडेंट्स के इतना फ्रैंकली नहीं हो सकते टीचर्स के साथ, तो जब आपस में ज़्यादा कम्युनिकेशन होगी स्टूडेंट और टीचर्स की तो कुछ बना हुआ जी, कुछ बनाया हुआ साइट पे काम जी किया हुआ बनाया हुआ है। हम कुछ देख सकते हैं अभी? जी, वेबसाइट कंप्लीट है। हम देख सकते हैं? लाइव है? जी, सॉरी, लाइव है? वीडियो है। वीडियो है, श्योर। चले दिखाएं। थोड़ा सा टेक बता दें आप, किसने बताया? एंटिटी फ्रेमवर्क। एंटिटी फ्रेमवर्क जी, वहाँ पर लिखा होता है एंटिटी फ्रेमवर्क। डू यू नो एंटिटी क्या करता है? ASP.NET एंटिटी फ्रेमवर्क है। जी, एंटिटी फ्रेमवर्क पर बनाया। ठीक है, आगे। ये आपने खुद बनाया? जी, हम दोनों ने मिलकर कंप्लीट। जी, 94 अच्छा, अब फीचर्स इन जनरल अगर आप बताएं तो आपने बताया कि जी बुक लेंडिंग वाला हो जाएगा, कम्युनिकेशन आप कोई सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम है जो स्टूडेंट्स और टीचर का आप सॉल्व करना चाह रहे हो, इसके अलावा कोई फीचर आपकी वेबसाइट का जो पर्पस हो जो फिल कर रहा है? हमारा जो मेन पर्पस है हमारे प्रोजेक्ट का वो ये है कि हम माइक अगर आप थोड़ा सा पास करें। जी श्योर। हम लोग टीचर्स का और स्टूडेंट का, सिंपल टीचर का नहीं, यहाँ पे 3 रिलेशंस बन रहे हैं, टीचर का, टीचर स्टूडेंट का और स्टूडेंट का। हम लोगों ने माइक थोड़ा सा पास करते हैं। हम लोगों ने जस्ट ये किया है अपनी यूनिवर्सिटी के लिए, क्योंकि हमने यहाँ पे 4 इयर्स अपने स्पेंड किए हैं, तो अपनी यूनिवर्सिटी की जो लैकनेस है ना उसको हमने देखते हुए ये प्रोजेक्ट माइंड में सोचा था कि हम ये डिज़ाइन करेंगे कि जो टीचर्स हैं ना वो एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकें। हैज़ लॉन्ग जैसे हम देखते हैं बाकी यूनिवर्सिटीज़ में, वेस्टर्न्स में, यूरोप में, कि वहाँ पे अगर देखा जाए तो स्टडी का जो रैंकिंग है वो कितना हाई है, वो क्यों है, वो इस वजह से। सॉरी, वी आर गोना कंसंट्रेट ऑन दैट। ओके फाइन। थोड़ा तेज कर सकते हैं इसका वीडियो? कैन यू जस्ट फास्ट फॉरवर्ड इट लाइक अ बिट, थोड़ा सा तेज कर। उनको करना पड़ेगा। ये वीडियो फास्ट फॉरवर्ड हो सकती है? करवा दें। थर्टी सेकेंड फास्ट फॉरवर्ड फीचर मिस हो रहा है इसे तो। बुक्स सो इट्स सॉर्ट ऑफ अ मार्केट प्लेस बिटवीन स्टूडेंट टीचर। अच्छा, इसमें कम्युनिकेशन गैप आपने कहा था कोई फिल कर रहे हैं हम, कोई चैट वगैरह का, वो कहीं नज़र नहीं आया अभी, तो जस्ट एक वो शॉपिंग कार्ट हमें नज़र आया है, मार्केट प्लेस आपने बनाया हुआ है। कम्युनिकेशन हम ट्रेडिंग के थ्रू कर रहे हैं ना, जैसे मैं एक टीचर हूँ, जैसे ये एक टीचर है, मैं किसी और डिपार्टमेंट की हुई, किसी और डिपार्टमेंट की है, मैं कोई चीज़ ऊपर अपलोड करती हूँ इसमें, फॉर एग्जांपल कुछ भी, और ये मैं कभी इनसे मिली नहीं हूँ, बट इनको मेरी वो चीज़ पसंद आ जाती है, तो वो मुझसे इस वेबसाइट के थ्रू कांटेक्ट करेंगी। इसमें मेरा ईमेल आईडी होगा, यहाँ पे डिटेल्स होंगी, व्यू डिटेल्स। सो आउट ऑफ द सिस्टम वो कम्युनिकेट करेंगे, आइदर कॉल, और सिस्टम कुछ ऐसा प्रोवाइड नहीं कर रहा आपको, सिस्टम के थ्रू वो करेंगे, सिस्टम के थ्रू करेंगे। सो लेट्स गेट टू द पॉइंट हियर। हाउ आर यू गोइंग टू मेक द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन? फाइनेंशियली अभी हम लोग जो बिल्डअप कर रहे हैं वो यूनिवर्सिटी की नीड को देख के कर रहे हैं।
ये प्रोजेक्ट स्टार्ट करने से पहले जब हम 7th सेमेस्टर में आए थे तब हमने इसका ओवरऑल यूनिवर्सिटी से पर्सोना टीचर से स्पेशली नॉट स्टूडेंट्स टीचर से फिलअप करवाया था कि अगर हम ये इस टाइप की वेबसाइट बिल्डअप करते हैं तो आप क्या उसको यूज़ करोगे कि नहीं करोगे और आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट उसमें चाहिए उस वेबसाइट के थ्रू, तो वो हमारे पास रिकॉर्ड है. Tell me one single thing that this site does and Facebook group does not do. सर जो फेसबुक है वो तो ओवरऑल सब कुछ कर रहा है ना, हमने इसको रिस्ट्रिक्टेड कर दी है विद इन मैं फेसबुक के ग्रुप को रिस्ट्रिक्ट कर देता हूँ. What would be that? I am trying to tell you something here and maybe learn in that process. अगर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन विद इन द साइट नहीं हो रही तो मैं किसी भी सोशल मीडिया पे जाके ग्रुप बनाऊंगा और वहाँ पे यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ऐड कर दूँगा. आई एम श्योर आपकी क्लासेस के ग्रुप्स बने होंगे. प्लस कम्युनिकेशन भी नहीं हो रही इसके अंदर कहीं भी. जो चीज़ भी आप बाय सेल कर रहे हैं ना उसकी ट्रांजैक्शन आपके सिस्टम का पार्ट होनी चाहिए. आपके सिस्टम के थ्रू वो बाय हो सेल हो पैसे कटें, ठीक है ना, वो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है. वो आपने किया इसमें? नहीं, ऐसा इसमें भी कुछ भी नहीं किया हमने. जस्ट इसमें भी सिर्फ इनिशियली कुछ टेस्टिंग 1-2 लोगों से करवाई है. उसमें से हमें सिर्फ पता चला कि हमारे 5% फ्लॉज आया है जो हमने उसको रिमूव करना है. फ्लॉज क्या है वो जो 5% थे? फ्लॉज एक ये ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 का फ्लॉ इसमें फ्लॉ आया है और दूसरा इसमें एक एरर आया था जब हम क्रिएट करते हैं तो वो बैकएंड पे चला जाता है तो वहाँ पे वो एक मैसेज डिस्प्ले होना चाहिए, तो वो एक एरर आया जो हमने वहाँ उसको ठीक करते हैं अपना. सही. Very good. Thank you. Okay, so that was a power of girls. To be honest, लड़कियों को different fields में इस तरह से देख के I am actually very proud that girls show up like this and that is truly the power of girls. So, जैसे जैसे time रहा है और teams आ रही हैं, उनके spirits they're so high and now we have the next team, Fantasy Destroyers. So, let's see what they bring on. So, there you go and best of luck. 0. Thank you. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Team Fantasy Destroyer and I'm Farwa Nazar. This is my partner. Why Fantasy Destroyer? इतना मीठे किस्म का नाम आप लोगों ने रख लिया. Yeah, it has a story behind it. Okay. Because when we started, we had this criticism to face that it is a fantasy and you guys won't be able to, you know. So, okay. Anyways, this is our project, NOW now, Need on Wheels. This is basically an Android app. And describe it as an extended idea of the transport service apps that we are using these days. You must be familiar with Uber and Careem, you know. Other way I would like to put it is that it is a versatile solution of the basic problems that the common man is facing these days. My motivation behind it, or the reason why I created it, was that there are two major problems of this era. One is the shortage of time, and the other is the extensiveness of distance. Most people may not see them as big problems, but once they are combined together, they, you know, create a lot of trouble, and things might get ugly because of them. My vision or the goals that we aim to achieve through this app are that promote the idea of trust and helpfulness among the people and create this harmony among the society, so that people, you know, should trust each other and help each other in different matters. All right. These are the three main features of our project. These are the things that we are providing: ease in transportation, availability of help from riding, and sharing of the essentials. In a different way, I'd like to say that we are giving this carpooling thing. The second is we are giving need-based assistance, and third is that the delivery of items. This is this is the client. Acha ji. So carpooling, as I said, now you guys say that
other apps and other companies are also giving this option. But we aren't just giving carpooling, we are giving destination based carpooling. अब मिसाल के तौर पे if I have to go to यहाँ से चलें, if I'm a part timer and I have to go to office, ठीक है, और अभी मतलब अगर मैंने 6 बजे यहाँ से पहुँचना है, ठीक है, और मुझे पता है कि मैं लेट हो रही हूँ क्योंकि अभी मुझे घर जाना है stuff, so I just pre-book this ride and I say कि right now I am at Lahore Garrison University Phase 6 campus and I have to go to Gulberg 3 and I will leave at around 4:30 or 5, ठीक है. So other people, I'll just put it on the internet and other people in my surrounding, when they see this, अच्छा भाई ये बंदा यहाँ इतने बजे से इतने बजे जा रहा है, ठीक है, और मुझे भी उधर ही जाना है, और ठीक है भाई रश हो रहा है, फेयर ज़्यादा है, कैब्स मिलना मुश्किल है, या कि कोई दोस्त भी ड्रॉप करेगा, स्टफ लाइक दैट, तो वो कहेंगे भाई ठीक है, इसका इस वक्त 600 चार्जेस है, मैं इसके साथ शेयर कर लेते हैं, तो स्प्लिट कर लेंगे फिर. दिस इज़ द आइडिया दैट वी आर प्रमोटिंग हियर, वी आर डिलीवरिंग दिस आइडिया. Second is this कि sharing and caring, that was the need based assistance. इसका हिस्सा से है कि usually I'm late for the class and everything, so I leave my home in a hurry. I come to the class, I open my laptop and this notification, it shows up that battery is about to die, ठीक है, now I need my charger that I forgot at home. So I'll just put it on the internet कि भाई this is my model of the computer and I need this charger. Is there anybody on the campus who has it? And yeah, there is this person in the next corridor and they say कि हाँ भाई मेरे पास है, and I tell them कि alright, just lend me this charger for 3-4 hours and I pay you per hour as much as you say, like 50 or 100 rupees, whatever you're comfortable with. So they'll say yeah, it's fine. Who amongst you is the developer? Sir, we are working together. Have you developed anything? Yes sir. मुझे बता सकते हैं जियो फेंसिंग क्या होती है? जियो फेंसिंग क्या होती है? जियो फेंसिंग? नो सर, सॉरी. लेट्स जस्ट कंटिन्यू. ठीक है, ठीक है, चलो वहाँ पे चलो. नीड बेस्ड असिस्टेंस के अंदर सिर्फ आइटम्स की मतलब लेंडिंग वगैरह नहीं है, हम लोग एक दूसरे को सर्विसेज भी दे सकते हैं. लाइक माय डैड इज नॉट रियली गुड विद कंप्यूटर्स एंड एवरीथिंग एंड ही इज एट ऑफिस एंड ही कॉल्स मी कि बेटा फाइल अनजिप कैसे करते हैं, या ये मेरा वाईफाई नहीं कनेक्ट कर रहा, ठीक है. तो अब बजाय कि मैं वहाँ जाऊँ उनके पास एंड गो हेल्प हिम या उन्हें कॉल पे सब कुछ समझाऊँ, वो बस सिर्फ ये कह दें कि आई हैव अ टाइनी IT इशू ऑन माई कनेक्टिविटी या जो भी लैपटॉप, तो उनके पास से कोई बंदा उन्हें रीच आउट करके हाँ भाई मैं आपका हेल्प कर सकता हूँ, इतना बहुत मुझे पता है, दैट बी वेरी कन्वीनियंट. या इफ आई गो होम एंड आई हैव अ इवेंट एट 7 o'clock and I tell I put this on internet कि I need mehndi at my on my hands, is there someone good with mehndi or anything, and there is this girl 3 streets away, she's like yeah I'm good with mehndi and designs, and she comes over at my place or I go to her place or we meet at a decided spot and I pay her or anything. Achha, we have understood the entire scope now and in a very detailed, elaborative way. Thank you. Can we see anything from the front end point of view, maybe some development, half cooked, anything? We have it's only an idea we're talking about, or is there a practical implementation that you posted? Sir, yeah, we have started the practical implementation and यार वो जो जिस फोन पे पहले वाला रखा, sir, although that is not very presentable, but I think that we would love to see that. आज actually using this phone only for the purpose of development. So ये basically initial level में हमने. It's absolutely fine. We want to see something. Start में वो आएगा, जो लोग हैं वो लॉगिन कर लें. आप लॉगिन नहीं है तो वो रजिस्टर करेंगे. आप साइन अप नहीं करें, आप लॉगिन कर लें. अगर कुछ बना हुआ पहले, अगर बना हुआ तो वो लॉगिन करेंगे और उनके सामने 3 चीज़ें आ जाएंगी. अगर वो कारपूलिंग चाहते हैं, नीड बेस्ड असिस्टेंस चाहते हैं या आइटम डिलीवरी चाहते हैं, वो जो चीज़ चाहते हैं वो उस पॉइंट पे उसके पास चला जाएगा. यहाँ पे गूगल मैप आएगा, ठीक है. अगर कोई इसमें दो चीज़ें, एक गिवर है और एक टेकर है. जो गिवर है वो तो सिंपली ऊपर मैप के ऊपर शो हो रहा होगा, और टेकर जो होगा, टेकर का सिंपली मैप में शो हो रहा होगा और वो उसको फिर क्लिक करेगा. Got it. This is where we are standing right now. बस ठीक है, थैंक यू. 3 डिफरेंट आइडियाज लग रहे हैं मुझे. अगर आपने एक एप्लीकेशन है उसका नाम सुना, वी कारपूल. वी कारपूल और सवारी, जो 2 ऐप्स हैं जो आपका पहला वाला काम करती हैं, वो पाकिस्तानी. ठीक है. जो आपकी दूसरी है उसके ऊपर भी एक एप्लीकेशन है, उसका मुझे भी नाम भूल रहा है, जो नीड बेस्ड असिस्टेंस है. ठीक है, वो अभी कुछ अर्सा पहले लॉन्च हुई है.
और तीसरी आपकी क्या चीज़ है? डिलीवरी, आइटम्स डिलीवरी। चीते का नाम आपने सुना? नहीं सर, आई वाज गोइंग टू टेल अबाउट दिस वन कि इसके अंदर उस तरह से नहीं होगा कि मैं अपना पुट करूं कि भाई मुझे यहाँ मेरी ग्रोसरीज पड़ी हैं आप लेकर आएं और वो लंबा सा फॉर्म फिल करूं। नहीं नहीं सर, इस तरह का नहीं है। इट्स लाइक आई एम सिटिंग एट माई होम एंड आई पुट इट ऑन द इंटरनेट के I have this package at Gulberg 3. Can somebody is somebody there? And you, if you are moving फॉरन to का नाम सुना है? कराची की कंपनी है फॉरन। अच्छा, वो यही काम करते हैं। sir we are And they are in market for like 3 years. sir we are actually reaching out people like बहुत ज़्यादा What I'm trying to say to you is how your app is any different from all those of. I was going to tell you this, sir. I'll share this story with you. It was my sister's birthday, ठीक है, and the cake making people, the cake people, they weren't delivering it. So I called the Uber and I was like, could you just go there? And वो तो उन्होंने कहा हम खाली गाड़ी में नहीं लेके आएंगे। चीते, I called them. They were sorry, I'm using the names. When did this birthday happen? Very recently? Yes sir, last September. Okay, Kareem does the delivery now. Now, sir, I mean they are like अच्छा, so improving basically and शायद अंडरलाइंग मैसेज है। पहला काम तो ये करें कि इस ऐप में 3 आइडियाज को कंबाइन ना करें, अलग अलग। पिक वन, गो विद दैट, so that you can actually complete something. ठीक है। They are very widespread, or maybe you don't understand the complexity of it. There is an article, maybe you go back home when you study it, कि when you cancel one of the rides in these carpooling or ride sharing service, so how catastrophic of a impact it has on the backend system in terms of all the drivers. Maybe you don't see the complexity of the system, how it is engaging. So बयान करने में तो easy लग रहा है, but that wouldn't be the case. Maybe that need-based assistance is something you can pick, go with it, because it seems like there are some cases that you quoted which make sense. उसमें भी आपको प्राइवेसी और बहुत सी इश्यूज से गुजरना पड़ेगा. If my father is back home alone and he does not know how to configure Wi-Fi and all that, and I really have to check who is actually coming up and fixing it, right? So there are some legal issues with it, privacy issues with it. दूसरा ये कि the way I see, one of the reasons I asked you about geofencing was because I wanted to see the depth of के how much do you know it. इन तीनों के कोर के ऊपर आपका एक आइडिया चल रहा है जो geofencing है, so maybe you need to technically equip yourself too. That just a humble feedback कि इसको रिकॉर्ड कर लें. Just focus on one particular problem and go with that. All right, sir. Thank you so much. You want to? No. Thank you. Thank you. Thank you. So that was Fantasy Destroyer with us. And welcome back, Umar Aftab. Thank you. First of all, I definitely understand the pressure actually to stand there rather than stand here. You were actually good, don't worry about This that. is actually very happening right now, right? Of course it is. So the coming up next team is Mirza Shahriyar Beg. And best of luck for your project. Standing here or standing there? Okay. So here you go and best of luck. अस्सलाम वालेकुम. हमारा प्रोजेक्ट है ऑटोनोमस सीडिंग रोबोट. ऑटोनोमस सीडिंग रोबोट जो कि एग्रीकल्चर ग्रोथ के लिए हमने एक सिस्टम डिज़ाइन किया है, एक रोबोट डिज़ाइन किया है जो कि फार्मर्स को हेल्प करेगा सीडिंग सिस्टम के अंदर. जो उनका सीडिंग का जो सारा प्रोसीजर है उसमें हेल्प करेगा उनको सीडिंग करने में, और जो सॉइल वगैरह उसका स्टेटस चेक करने के लिए. ठीक है. और स्टेटस चेक करेगा कि उसके बाद में कुछ स्टेटस चेक करेगा, सीडिंग करेगा. सीडिंग बीज मतलब जो बीज जो है ना उसमें जो है ना करेगा, ड्रॉप करेगा, प्रेडिक्ट करेगा या बीज डाल के आएगा? बीज डाल कर आएगा. अच्छा. बीज डालेगा और उसको जो बाउंड्रीज होती हैं, जिस तरह हमारा फील्ड, जिस तरह जो फार्मर्स फील्ड बनाते हैं, जिस तरह खेत बनता है एक, ठीक है, उसमें फील्ड बाउंड्री बनती है जो कि 48 इंचेस की होती है. उसमें रोबोट मूव करेगा. ठीक है. उसके पीछे मैकेनिज्म है एक जो कि सीड ड्रॉप कर रहा होगा और उसको क्लोज कर रहा होगा. ठीक है. और उसके अंदर वाटर भी ड्रॉप कर रहा होगा. इसका मेन पर्पस ये है कि हम जो वाटर का वेस्ट है उसको, और जो सीड्स हमारे वेस्ट होते हैं जिस तरह हैंड से जो आजकल जो हमारा दूसरा जो ट्रेडिशनल जिस तरह करते हैं वो लोग, उससे सीड्स वगैरह वेस्ट होते हैं, उसको जो है इम्प्रूव करने के लिए ये रोबोट डिज़ाइन हुआ है जो कि सीड करेगा.
ठीक है। और उसके बाद जिस तरह इसमें एक और चीज़ भी है कि जिस तरह चावल का खेत होता है, ठीक है, जो चावल की फील्ड होती है उसके अंदर वो लोग पानी जो वगैरह सारा कुछ उसमें कर देते हैं, सारा बना के बाउंड्रीज में पानी वगैरह डाल देते हैं उसके अंदर। इसमें टेक्नोलॉजी चेंज इस तरह हो जाएगी कि बैकग्राउंड है कहाँ से? जी बैकग्राउंड लाहौर कैसी होती है जी, कास्ट कैसी होती है पता है आपको? जी मुझे किस तरह लाई दी है पता है? जी वो पता है। उसमें जो है उसमें पानी कैसे डलता है, किस तरह पीटल चलते हैं, काश कैसे होती है, किस सीक्वेंस में लोग खड़े होते हैं, कितनी देर में कटाई होती है, जी उस पर रिसर्च की हुई है थोड़ी सी, कितना पीरियड होता है उसका फसल का, ये सारा पता है आपको? जी उस पर थोड़ी सी रिसर्च हम और भी कर रहे हैं। जिस तरह एक ब्रिगेडियर साहब हैं हमारे, जो उनका फार्मर है, अपना उनका फील्ड है, तो वहाँ पे हम वो टेस्ट कर रहे हैं उनका। कास्ट करेंगे और आपका रोबोट गीला हो जाएगा? नहीं, उसमें वही बता रहा हूँ, उसमें टेक्नोलॉजी चेंज है। उसमें हम जो पानी होता है वो पानी उसमें नहीं होगा उस खेल के अंदर, उसमें रोबोट जो है वो मूव करेगा जिस तरह नॉर्मल, जिस तरह गंदम का होता है फील्ड, जिस तरह बीज बोएगा वो, ठीक है, लेकिन उसमें पानी नहीं होगा उस खेत के अंदर। टेक्नोलॉजी चेंज हो जाएगी। वो इस वजह से पानी डालते हैं क्योंकि वो बूटी को मारने के लिए, वीड्स जो यूजलेस वीड्स होती हैं उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए, जो उसमें से ख़त्म करने के लिए वो उसको प्रोसीजर, हमने वो प्रोसीजर ये रोबोट बनाया इसलिए ताकि वो जो बूटी है ना, वो बूटी रोबोट डिटेक्ट कर लेगा और उसको रिमूव कर देगा। उसमें रोबोटिक हैंड है, क्योंकि रोबोट इमेज प्रोसेसिंग भी है उसमें जो है उसको फॉलो करेगा, ठीक है, उसको रिमूव कर देगा। इट्स अ वेरी टॉल स्टेटमेंट दैट यू आर मेकिंग। व्हाट यू आर सेइंग इज कि द वे इट हैज बीन डन फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स, यू आर रेडिकली चेंजिंग इट। कुछ प्रीरेक्स होते हैं एक किसी भी फसल को काश्त करने के लिए, वो थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स जैसे वो कह रहे हैं कि वो उसी तरह से होते हैं। आप पानी लगाने का तरीका तो चेंज कर सकते हैं, लेकिन आप पानी को एलिमिनेट नहीं कर सकते। जी बिल्कुल, ठीक है ना, कि मैं पानी लगाऊंगा ही नहीं, मैं सिर्फ सीड लगाऊंगा। एंड we would love to hear no कि we were wrong. हाँ, yes, I mean this is interesting. I mean, you need to back it with some. नहीं, इसमें ये टेस्ट हुआ है एक फील्ड के अंदर के बाउंड्री वगैरह बना के, जो उन्होंने जो ट्रेडिशनल जिस तरह होता था ना पहले, उसको उन्होंने थोड़ा चेंज किया, ठीक है, वो बाउंड्रीज वगैरह बनाई हैं उसकी। उसमें जब उन्होंने सीडिंग किया तो उनको रिजल्ट जो है इम्प्रूवमेंट आई है, ठीक है, जिसकी बेस पे ये हम रोबोट बना रहे हैं सीडिंग करने के लिए। एंड दैट इज अ रिसर्च ऑफ ये कनाडा, यूएस, पाकिस्तान के कोई लोकल फार्मर, कहाँ की रिसर्च? जी लोकल फार्मर, ये मैं टेक्नोक्राफ्ट में काम करता हूँ, मैं जॉब करता हूँ, ठीक है, ड्रोन्स डेवलपमेंट में काम करता हूँ। तो वहाँ पे हम एक फार्मर है हमारे ब्रिगेड साहब को बताया मैंने उसमें, तो उनकी एक फील्ड है, तो हम एक रिसर्च पर्पस के लिए हमने ये प्रोजेक्ट सेलेक्ट किया मैंने खुद वहाँ पे, तो इसमें इंटरेस्ट लिया। तो उन्होंने चावल की काश्त किया बगैर पानी के? जी, I'll buy that. It's fine if you are saying it with such a confidence. I'll buy that. Can we see something? इस वक्त मेरे पास इसके डिजाइन है फिलहाल, ठीक है। इसका ग्राउंड कंट्रोल सिस्टम है पूरा, ठीक है, जो कि जीपीएस नेविगेशन होगी उसके अंदर। पाथ आप खुद डिफाइन करेंगे अपनी जो मतलब एरिया है उसकी पाथ नेविगेशन आप खुद देंगे, पॉइंट कि इसने इस वाले पॉइंट पे जाना है, यहाँ से मूव होना है। रोबोट देखना चाह रहा हूँ, कैन यू शो समथिंग? रोबोट, एक मिनट, इसका ये मैकेनिज्म इसका डिजाइन है, ठीक है, जो कि डेवलप हुआ हुआ है, ठीक है। इसमें इसकी ये थोड़ी सी इनकम्प्लीट हुई हुई है। इसके नीचे जो है ना, नीचे यहाँ पे डेवलप हुआ हुआ है। जी डेवलप हुआ है जी। कैन यू मतलब यू डिड नॉट ब्रिंग दैट टुडे विद यू स्पेसिफिकली? इस वक्त नहीं लेकर आ सके हम इसे यहाँ। कोई खास वजह से? ओके, वजह ये थी कि इसके नीचे वाले पार्ट्स हैं वो थोड़े से प्रॉब्लम कर रहे थे, जो इनको जो है एनी रियल लाइफ फोटो ऑफ दैट वुड बी अवेलेबल? नो नो, दैट्स नॉट हाउ यू हेड फॉर अ प्रेजेंटेशन, बट ओके, आप कंटिन्यू करें। उसका जिस भी वो हालत में है उसकी एक्चुअल इमेज यहाँ लगा देते तो दैट वुड हैव बीन गुड। वो इतना टाइम थोड़ा सा उसमें हो गया हमारा आज, लेकिन ये एक्चुअली इसकी इमेज यही है। इसके ऊपर जो है सोलर पैनल है, सोलर पैनल से हम जो है उसको कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है। और इसमें इसकी आई एम इंटरेस्टेड इन के जब ह्यूमन कास्ट करते हैं ना तो उनकी स्पीड बड़ी स्लो होती है जी। ओनली रीज़न कोई काश्तकार मशीनों की तरफ जाता ताकि वो अपना काम जल्दी इम्प्रूव कर सके, ठीक है ना। तो सोलर पैनल हैं, ये शमसी तवानाई से चार्ज होता है, नीचे इसके पहिए हैं। तो ये इसकी आपने क्या रखा है कि कितनी अरसे में आपके पास क्या एनालिटिक्स क्या है कि कितना बीज होगा, इतनी फसल होगी, इतनी देर में ये काश कर देगा? वो हमने इसके ऊपर मैं बता रहा हूँ, उसमें जीसीएस कंट्रोल है जिसमें इसकी जो है पावर की जो है ना स्टेटस आ रहा है हमारा कि कितने एम्प्स जो है ये ले रहा है, ठीक है। उसके ऊपर हमने किया कि एक फर्ज करें कि 1 इंच बाद जो है ना एक सेंटीमीटर या 1 फुट बाद उसने एक बीज ड्रॉप करना है, ठीक है।
तो उस पे भी सेंसर्स लगे हुए हैं उसके बॉक्स के ऊपर. And how would it drop something? Sorry, I'm very interested in this. How would it drop a seed? ये चार पहियों से वो सीड कैसे जमीन में जाते सीड ड्रॉप इस ना करेगा, इसका मैकेनिज्म है नीचे एक, ठीक है, which we cannot see. जी, which only you know. Yes, I know. Okay. उसमें था नहीं, मैं बता रहा था. मुझे वैसे समझा दें, मैकेनिकल आर्म्स हैं. जी, मैकेनिकल आर्म है इसका. मैकेनिकल पूरा एक ना बना हुआ है इसमें, जिसमें सीड होते हैं, बॉक्स है, ठीक है, उसमें सीड्स हैं, ठीक है. What is the height of this thing? इसकी हाइट जो है वो, इसकी तो 24 इंचेस है टायर्स के मिला के, तो ये तकरीबन 3 फुट या. So that mechanical arms goes 3 feet down. Yes. अर्थ के अंदर पेनिट्रेट करता है जी, जाके सीड ड्रॉप करता है. सिंगल नहीं, वो सीडिंग ड्रॉप का जो मैकेनिज्म है वो फिक्स है. उसमें एक बॉक्स है जिसमें सीड्स हैं, ठीक है, और एक व्हील है जो मूव कर रहा है जिसमें सुराख हुए में इस तरह वो रोटेट कर रहा होता है. जिस तरह रोबोट चलता जाएगा, उसके पीछे एक मोटर है जिसकी टाइमिंग हम सेट कर लेते हैं उसकी, ठीक है. रोबोट मूव कर रहा होगा, सीड उसमें जा रहा होगा और नीचे ड्रॉप कर रहा होगा, नीचे सेंसर होगा, उसे इंडिकेट कर रहा होगा नीचे जो है आपका सीड्स चला गया, ठीक है. और अगर You've never run that, right? You've never run that. हमने किया हुआ ये. Can you tell me कि सॉइल की क्या कंडीशन होनी चाहिए जिससे वो व्हील जमीन में पेनिट्रेट कर जाएगा? नहीं, सॉइल व्हील जस्ट यूज हो रहा है ड्रॉप. व्हील के अंदर आगे नीडल्स तरह से है ना जो. नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, एक व्हील है, व्हील के अंदर जो है ना होल्स हुए हैं, ठीक है, नोजल टाइप नहीं है, व्हील्स के अंदर होल्स हुए हैं. होल्स के अंदर जिस तरह वो मूव कर रहा होता है उसके अंदर, ठीक है, और सीड्स जो है ना उसके अंदर जा रहा है. इन द वेरी बिगिनिंग यू सेड कि हमने एक मैकेनिज्म डेवलप किया है जिसके थ्रू सीड प्लांट होने के बाद वो मिट्टी को वापस भी कर देगा. यू सेड दैट. आई जस्ट वांट टू अंडरस्टैंड कि दैट मैकेनिकल थिंग दैट यू हैव बिल्ट वो जमीन की गहराई में जाके सीड ड्रॉप करके कैसे उसको कवर कर रही है. कवर कैसे कर रही है? सीड्स वो ऊपर से ड्रॉप कर रहा है. मैंने एक सीड फेंक दिया, उसने सीड फेंका है, नीचे मैकेनिज्म है जो उसको कवर कर रहा है. सीड, वो जो मैकेनिज्म है ना जो सीड कर रहा है वो नीचे नहीं जा रहा. फाइन. खुदाई कैसे हो रही है? किसकी खुदाई कैसे हो रही है जमीन में? खुदाई जो पहले एक ट्रैक्टर चलता है जिसने. अच्छा, वो उसने कर दी हुई है. उसने एक मैं दिखाता हूँ, एक एंड पे ये जिस तरह ये बाउंड्रीज बनी होती है ना, ठीक है, ट्रैक्टर ये बाउंड्री बना देगा. हमने पार्ट डिफाइन कर दिया रोबोट को कि इसने इधर मूव करना है, तो वो इसमें मूव करेगा, ठीक है. और जैसे ही इस जगह पे आप चावल काश कर रहे हैं जी, इस जगह पे आप चावल काश कर रहे हैं, करेक्ट? ये दूसरी. यू वांट टू चेंज द क्रॉप. आई एम फाइन विद इट. आई एम जस्ट गिविंग यू एन ऑप्शन. यू वांट टू चेंज द क्रॉप. यस, कर सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं. अच्छा, ठीक. अच्छा, मुझे एक बात बताओ जी. अगर आप चावल काश करते हैं तो सीड ड्रॉप तो नहीं होता, वो तो जाके लगाना पड़ता है जी, ठीक है ना. तो और अगर आप कोई और फसल भी काश करते हैं, थोड़ी सी मेरी अंडरस्टैंडिंग गलत हो सकती है, जी, लेकिन आपको थोड़ी सी जगह बनानी पड़ती है सीड ड्रॉप करने के लिए, चाहे आपने जितने मर्जी ट्रैक्टर चलाए, ठीक है ना. आप थोड़ा सा यूँ स्लाइड मारते हैं, फिर आप उसमें एक बीज रखते हैं. अगर आप वीडियोस देखो यूट्यूब पे, इस तरह की बड़ी मशीनें हैं जो ये काम करती हैं, तो अगर आप उसको ऊपर से ड्रॉप कर दोगे वो अंदर तो नहीं जाएगा. जो मैकेनिज्म है ना वो जब चल रहा है ना, उसके अंदर एक तो कवर कर रही है, एक नीडल ऐसे है जो कि उसको बीच में जो है ना उसकी जगह बना रही है, और एक ड्रॉप कर रही है. लेकिन आपकी जो इमेज आपने दिखाई है इसमें तीनों चीज़ें नहीं है. इसमें वो चीज़ें इसमें नहीं है, लेकिन पहिए लगे हुए हैं जी, और ऊपर एक ऐसा लगा जैसे कोई रेडी है. हाँ, ऐसे बगी. एंड व्हाट इज द रेंज ऑफ दैट थिंग दैट आई एम कंट्रोलिंग? ये काफी दूर तक जा रहा है ये खेत. हमने टेलीमेट्री कंट्रोल पे 40 किलोमीटर तक काम किया हुआ लाइन ऑफ साइट्स के ऊपर. ठीक है. इसकी स्पीड क्या है? लेट्स से 1 एकड़ के ऊपर ये कितनी देर में काम करता है? वो हम पे डिपेंड करता है, हम कितनी इंक्रीज कर सकते हैं, इतने ज़्यादा. मैक्सिमम क्या, कोई लिमिटेशन तो होगी ना? मैक्सिमम इसकी तकरीबन 250 आरपीएम या फिर 200 आरपीएम तक. फुल चेक नहीं की हुई, हम स्लो चला रहे हैं इसको रोटेट करने. एक आदमी से ज़्यादा तेज कर सकते हैं जी, लेकिन मैन पावर से ज़्यादा है. कितना तेज? इन टर्म्स ऑफ टाइम्स, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स? 3 टाइम्स ज़्यादा है, 3 टाइम्स ज़्यादा होगा इससे, क्योंकि वो मूव कर रहा है अपनी मोटर्स के ऊपर, जो उससे टाइम ज़्यादा है उसके पास उसको मूव करने में. एंड हाउ फार आर यू विद द डेवलपमेंट ऑफ इट? सॉरी, डेवलपमेंट आपकी कितनी हो चुकी है? डेवलपमेंट कितनी फ्लिप कर देता हूं इसमें तकरीबन टू मेक इट इजियर फॉर यू. जी, 80%. कैन 5 days from now जी you show us the robot running on the floor? 5 days. There is a particular reason I'm asking you this. 8 days maximum required for this completion. You are standing at a point कि जिसमें आप चला के यहाँ पे सीड गिरा के दिखा सकेंगे हमें. जी,
Okay. It doesn't have to be perfect. Yes. लेकिन अगर आप दिखा दें तो that would be great. मेरे पास इस वक्त वीडियो नहीं है, वरना मैं आपको दिखा देता हूँ कि हमने इसको कवर किया हुआ है इसको। एक वीक तक आप कर सकते हैं ऐसा कि नहीं कर जी सकते? इंशाल्लाह करेंगे आप? जी इंशाल्लाह। Can we call these guys tomorrow again with the videos? We want you to come again tomorrow with one of the videos of your hardware. Can you do Or that? at least the pictures. Or bring the hardware जिस भी form में है. हाँ, we want to see that. Because otherwise we are at a conflict जिसमें हम we will not reach to a graceful conclusion. Take the time from the Microsoft guys. They'll let you know what time to come. ठीक है। Thank you. Thank you. On hold. Okay, so thank you so much, boys. That was an amazing project. Actually, that was very good, right? That was actually. So, before starting, I'm going to ask the judges, okay, basically, what are you trying to see the main goal of any project? What's the main goal? What should be the main goal of any project that you're observing here? There are a couple of things that we have to look for. एक ये है कि it's not an entrepreneurship event. Yes, exactly. It's a particular software competition जिसमें हमारे पास एक rule set दिया हुआ है. And for the people may or may not be familiar, 50% of the weightage goes to the technological part of it. Right. But of course, we want to see whether there is a marketing plan. Have they looked at the financials of it? क्या market readiness है? Completion कितनी है? What is the part of innovation? For example, these guys who just came up with, they're trying to solve a real life problem which can have a direct impact on the life of the people in a positive way. We certainly look at it. This is in a nutshell, and then which is relative to a particular problem. But technology is the major part that we have to consider, and how they are being utilized. So the spirits are also high, and I wish all of you best of luck. So further, we would like to acknowledge actually a few people. Exactly. Because उनकी वजह से actually event possible बिल्कुल भी नहीं हो सकता था, right? जी बिल्कुल. First of all, Mr. Dr. Amir Mahmood Bajwa, actually he is actually sitting over here, the director, the producer, and actually he is actually everything, right? The project leader of the Imagine. He is doing everything right now. Further, we have Mr. Zakaul, actually who is a focal person who have been talking with the Imagine people and organizing all the event. Then we have Mr. Taimur Hassan, who's actually FIP coordinator at Lahore Ghazni University, and Mr. Zulkifil Hassan, who is actually supervisor of GITS, and most of the projects that you select were actually that are under his supervision. GITS is Garrison IT Society. That is actually helping in hosting and actually carrying out this event. So, in लोगों के बगैर actually possible नहीं था. Actually, everything you are seeing here actually is actually possible only for this. For them, just because of them. So actually, we appreciate them, right? We appreciate them a lot, and thank you so much, everyone, especially the sirs, for bringing up this event in Lahore Garrison University. So we should probably go to the next presentation. Yes, we should. So coming up next is the AR team with us. So best of luck for your project. Here you go. Thank you. Assalamu alaikum. Yes, sir. Move on. It's not moving. It's not working. No. सर अस्सलाम वालेकुम. इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं. माय नेम इज़ मोहम्मद अनस हबीब. ये बडीज़ आसन हबीब और उमर इरशाद. ठीक है. हमारा प्रोजेक्ट जो है एआर टीम, हमारा ग्रुप ना प्रोजेक्ट है चिल्ड्रन लर्निंग सिस्टम. अब स्टार्ट करते हैं आगे. सर यहाँ जो हमारे प्रोजेक्ट से रिलेटेड है क्वेश्चन यहाँ ये आता है सर अवे फ्रॉम द कि आप लोगों में से किसी ने ये फील्ड किया हो, मतलब एक फेस किया हो कि प्ले ग्रुप से लेके किंडरगार्टन ग्रेड 1-2 तक आप अपनी क्लास में लेक्चर के दौरान सो गए हो.
मतलब इंटरेक्शन, मोटिवेशन, स्टिल डू, ठीक है। अच्छा, ये चीज़ हम में भी थी, हमने भी देखी, इसी को देखते हुए हम शुरू से इसके ऊपर करते आ रहे थे और यही हमारा फोकस था, इंटरेक्शन। फिर इसके बाद इसके अंदर एक चीज़ और आई, हमने देखा कि हमारे मतलब पाकिस्तान में स्लो लर्नर्स, जिसे हम स्पेशल चिल्ड्रंस कहते हैं, उनकी स्टडीज़, मतलब अगर हमें इतना इफेक्ट हो रहा है, हमारी इंटरेक्टिविटी नहीं बढ़ रही, इतना मतलब मसला आता है, तो उनको कितना ज़्यादा होगा। तो हमारा प्रोजेक्ट बेसिकली ऑगमेंटेड रियलिटी बेस्ड प्रोजेक्ट है, जो उनके लिए है, उनकी एजुकेशन को बेहतर करने के लिए, ठीक है। अब ऑगमेंटेड रियलिटी क्या है? ऑगमेंटेड रियलिटी जो है एक डिजिटल इमेज की इंटीग्रेशन है यूज़र के रियल इन्वायरमेंट्स के साथ, ठीक है। जैसा कि हमने पोकेमोन गो ऐप देखी, गेम वगैरह सारा कुछ, तो हमारी भी एप्लीकेशन का इस तरह कुछ होगा वर्क। अब बात करते हैं कि हमें मसला क्या है, मतलब प्रॉब्लम स्टेटमेंट पे। तो यहाँ पर पाकिस्तान में कुछ फिंगर ऑफ टिप्स पे आप कह लें नंबर ऑफ़ स्कूल्स हैं जो स्पेशल चिल्ड्रंस को, जो स्लो लर्नर्स हैं, उनको गाइड कर रहे हैं, उनको पढ़ा रहे हैं। उसमें से लिस्का आ गया, राइजिंग सन आगे, और द स्कूल फॉर स्लो लर्नर्स है। ये 3-4 स्कूल हैं इस तरह। तो हमने इसके ऊपर अब एप्लीकेशन, अब उनकी टीचिंग का जो उन्हें वैसे मसला आ रहा होता है पढ़ने में, सीखने में, और यहाँ पर स्कूल भी नहीं है, तो उनके लिए काफ़ी कह लें कि फुकदान है तालीम को हासिल करना। तो उसको देखते हुए हमने फिर ये एप्लीकेशन जो है बनाई। इसको हम मतलब चल रहा है फेज़ भी, और ये आपको डेमो दिखाते हैं इसका। सर वीडियो चलाएगा। ओके, वीडियो प्रेस, वीडियो लेगा इसका। यहाँ नहीं आ रही, यहाँ नहीं आ रही। This is quite a difficult job of the back office, है ना, to manage this मीडिया में अगर लाइव हो तो। अब मुझे समझ आया जो जियो वाले कहते हैं कि लाइव हम आ रहे हैं, तो उसमें पीछे क्या क्या पापड़ बेल रहे होते हैं वो लोग। अच्छा, ये सर आप ट्रैकेबल, ये है TC। अब हमने फॉर्मेशन उसने गेट कर ली, लेकिन प्रॉपर एक वर्ड नहीं बन रहा, ठीक है। फिर अब हमने क्या किया, इसको एक प्रॉपर रखा, इस तरह उसने पढ़ा आप क्या है, ठीक है। अब ओके, अब इसका क्या होगा कि एक स्कूल में जो है क्लासरूम में इंटरेक्टिव एनवायरनमेंट बनाया गया। इसका किस तरह वर्किंग होगा? प्रोजेक्टर होगा, प्रोजेक्टर आपका, ठीक है, टेबल पे आता सारा। इसके जो है डेटाबेस हम वो बनाएंगे, जो बना हुआ सारा कुछ। अब स्टूडेंट क्या करेगा, ये तो अभी ट्रैकेबल इस तरह है, ये क्यूबिट ट्रैकेबल होंगे वो एक, तो उसको दे दिया जाएगा। अब टीचर ने पढ़ाया लेटर वर्ड जो पढ़ा दिया कि CAT कैट है, ठीक है। अब उसको नहीं रहा याद, मतलब सही है। अब वो क्या करेगा, इससे खेलेगा और सीखेगा। वो क्या करेगा, जैसे हमने पहले आगे पीछे रखे, उसकी चेंज की, उसकी CAT की जगह उसने ACT इस तरह रखा, वर्ड बना, फॉर्मेशन बनी, लेकिन मतलब वो प्रोनाउंस जो उसकी ग्रेड के लेवल का वो नहीं हो रहा। जब क्योंकि टीचर ने उसको जो पढ़ाया वो भी नहीं आ रहा। अब वो जब करता करता जब CAT जब आएगा, कैट का एक उसको वो बनाएगा ऑगमेंटेड रियलिटी, वो इमेज आएगी, ठीक है। तो वो उसको याद होगा, हाँ ये पढ़ाया था, ये उसके लिए कितना इंटरेक्टिव भी हो जाएगा, मोटिवेशनल। वो कहेगा हाँ मैं और करता हूँ। अब इस तरह CAR कार, इस तरह 3 लेटर जो मतलब जो एक उसके लिए लर्निंग स्टार्टिंग फेज का, तो ये सारा कुछ होगा इस तरह। ये उसका पढ़ने का, लर्निंग करने का सारा होगा तरीका। द इम्प्लीमेंटेशन इज डन इन जी, इम्प्लीमेंटेशन जी सर, हमारे पास लाइव डेमो भी है। नहीं, लाइव डेमो गूगल कार्डबोर्ड है क्या है? नहीं सर, मोबाइल एप्लीकेशन है, अभी मोबाइल एप्लीकेशन है, ट्रैकेबल्स हैं हमारे पास जिनको वो डिटेक्ट करेगा। आई नीड टू सी अ फ्यू ट्रैकेबल्स, कैन यू? या ऑफ कोर्स, दिखाओ द साइज ऑफ इट प्राइमरली। और ये आगे क्यूबिट में होंगे, क्यूब होगा बच्चे के पास और वो उसको डिटेक्ट। एंड these are the only ones that it is going to recognize, correct? Yes,
मतलब Can I come up with the variation of A? Just want to know because yes sir, we can check you if you would want. आपको दिखाएं? हाँ दिखाओ. I want to see that. और टूल किट कौन सी यूज की है? यूनिटी और विफोरिया. जो वो डेटाबेस बना रहा है विफोरिया. ठीक है. Which is fine. I just want to. ठीक है. ठीक हो गया सर. ब्लॉक्स बने होते हैं उनके साथ ही चलेगी. हाँ वो इसका हम जो डेटाबेस हम बनाएंगे क्यूबिट. अब ये इसकी ट्रैकेबल विफोरिया पे डेटाबेस है, उसको हमने आगे यूनिटी पे इसके साथ इंटरेक्ट करवाया हुआ है. अब वो आगे हम जो है क्यूबिट का करेंगे जो वहाँ पर ज़रूरत है. तो फिर आगे हमारा जो लेटर ऑन इस पे काम ये क्यूबिट पे ही होगा कि बच्चे के लिए वो खिलौना होता है, वो इस तरह का ट्रैवल. हाँ उसकी वो हमने डेटाबेस उस पर बनाना और वो सारा आगे कर. इसको सेटअप के लिए जस्ट एक मोबाइल ऐप कॉस्ट है इसकी. मोबाइल ऐप है और सर स्टार्टिंग में थोड़ा सा है महंगा. मतलब ऐप हम प्रोजेक्टर एक करेंगे स्टूडेंट के लिए. अब हर बच्चे को तो हम मोबाइल वो ऑलरेडी स्पेशल प्रोजेक्टर है कि ये बस सिंपल नॉर्मल. सर प्रोजेक्टर ये है, इसके साथ कैमरा भी है, मतलब वो सारा इमेज को नीचे से ट्रैक करेगा. ठीक है आप जरा इसको. सर वो जो इसमें सिंपली है मोबाइल ऐप, अगर आपने मोबाइल पे करना है मोबाइल आगे पास उसमें इशू ये आता है कि बच्चा मोबाइल लेके पढ़ता रहेगा, ये नीचे से ट्रैकेबल के साथ खेलेगा. ये इसलिए हमने ये किया था कि कोई भी सिंपली आप प्रोजेक्टर ले लें, मोबाइल से अटैच करें, ऊपर से प्रोजेक्शन कर रहा हो एबीसी के साथ, कैमरे में नजर आएगा. जैसे ही वो एबीसी करेगा आपको वहीं पर एबीसी के ऊपर प्रोजेक्शन नजर आ जाएगी. कोई भी प्रोजेक्टर आप कह रहे हैं वर्क करेगा. बिल्कुल जो मोबाइल से अटैच और साथ स्क्रीन पे उसको वो चीज़ शो हो रही है और प्रोजेक्शन. अच्छा, two things which I need to know. There are 26 samples that you have handled so far, correct? ठीक हो गया. Have you seen the limitation of where it starts confusing? A और D में क्या करता है? सर जी कंफ्यूज नहीं करता. ये जो बेसिकली हमें डेटाबेस मिलते हैं उसके हिसाब से अगर वो इमेज वहाँ पर होगी तो कंफ्यूज. So इसकी वेरिएशन चल जाएंगे एक ही या नहीं चलेंगे? वेरिएशन से आप क्या मुराद? Font. Size and most of the toolkits have the limitation when it comes to the variations. ठीक है सर. अभी जो एक ये कर रहा है कि हमारी डेटा हम एक इमेज ट्रैकेबल की वो वहाँ पर सेव करता है, उसको वो अपने डेटाबेस में रेटिंग के साथ करता है कि ये मेरे एक्सेप्टेबल है कि नहीं. वो फिर आगे जो है इसके साथ इंटरेक्ट करके इसको वो दिखाता है जो आपका यूनिटी है. Come again, दोबारा. विफोरिया जो है हमारा वो सर इसका ट्रैकेबल हमने एक इमेज ली उस पर अपलोड करते हैं. ठीक है. वो उसको रेटिंग देता है कि ये एक्सेप्टेबल है, वर्केबल है. ठीक है. फिर वो डेटाबेस हम उससे लेते हैं और यहाँ पर अपना इंपोर्ट कर देते हैं. ठीक है. अच्छा, वन फाइनल क्वेश्चन. सपोज करें CAT cat है. जी. Then simultaneously the kid goes to RAT rat. And then he puts 5 blocks together. ठीक है. And creates a word. बिल्कुल. Do you have the limitation? यस सर. अभी ये 3 लेटर्स के असल में मेन जो काम है ना वो ये था फॉर्मेशन ऑफ लेटर्स और वर्ड जो बना के उसके ऊपर मॉडल्स वगैरह चल रहा है. अभी हमने आपको एक मेन चीज़ दिखा दी कि ये काम मतलब हो गया. अब हम इसका नंबर ऑफ लेटर्स वो जो आप आई एम प्रीटी श्योर यू कैन डू दैट. मैं सिर्फ ये समझना चाह रहा हूँ कि आपका विजन समझना चाह रहा हूँ. जी विजन. आर यू गोइंग टू पुश दिस फ्रॉम द इंटरनेट या ये हार्ड कोडेड होगा एप्लीकेशन? हम खुद बनाएंगे, हार्ड कोडेड होगा. जी फ्यूचर जो है ना बाद में जो हमने बेसिकली जो बहुत नियरली फ्यूचर तो उसमें ये होगा कि एक पोर्टल होगा बेसिकली टीचर और स्टूडेंट. वहाँ पर एक पोर्टल होगा, वहाँ पर टीचर मिलने बेसिकली स्टूडेंट्स हैं उसके पास. ठीक है. एक है जो तेजी से लर्निंग सीजन स्टार्ट कर दिया. वो मैं बताता हूँ वो जो अब आपकी बात का मैं जवाब वो देता हूँ प्रॉपर कि इसके अंदर हम आगे जाके कस्टमाइजेबिलिटी रखेंगे. मतलब कस्टमाइजेबल होगा ये कि आप जो कह रहे हैं लेटर्स एक मतलब 5, 10, 20 लेटर्स तक मतलब ये जाता है और ये सिर्फ ABC तक नहीं रहेगा. हम इसको 2+2 4 हम न्यूमेरिक और जो है अल्फ़ाबेट उस पर भी आगे लेके जाएंगे. अब इसका कस्टमाइजेबल इस तरह होगा. अब 2 स्पेशल चिल्ड्रन हैं, दोनों सेम तो नहीं है. एक को थोड़ा जल्दी पिक कर रहा है, एक को थोड़ा टाइम लग रहा है. अब ये कस्टमाइजेबल इस तरह होगा जो क्लास के टीचर होगा उसके पास ये अथॉरिटी मतलब वो कर सकता है कि अगर एक मतलब टेस्ट आई जा रहा है एप्पल 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 एक बच्चे से नहीं मतलब हो रहा और उसके लिए तो बहुत आसान है. अब उसके लिए तो बहुत जल्दी करी जा रहा है, इसके लिए बोरिंग हो जाएगा और इसके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, मेरे से तो हो ही नहीं रहा. तो टीचर के पास ये कस्टमाइजेबल इसके अंदर वो चेंजिंग करने की एबिलिटी वो टीचर कर सकता है अपने स्टूडेंट के मुताबिक. वन फाइनल थिंग, व्हेन यू मेंशन कि यू नेम 3 इंस्टीट्यूट्स, आर यू इन डिस्कशन विद एनी वन ऑफ देम? सर बिल्कुल
ऐसा तो उनसे बात नहीं की, हमने अपना एक जो इन्फॉर्मेशन लेनी थी कि कौन कौन यहाँ पर मतलब कर रहे हैं, तो वो इंटरनेट पे जाकर देखा कि पाकिस्तान में ये जो प्रोमिनेंट नाम आए हैं, ये लिस्का और A kid to play with? यस रिपीट से। Have you given it to any kid to play with? नहीं, अभी हमने सर अपनी फैमिली में ही मतलब दिखाया है सर। एक चीज़ हम इसको प्रॉपर बना लें, फिर इसको आगे सारा जो करेंगे। And your understanding is the kid is going to hold this phone all the time? सर आपने हमें पहले बताया, आपने शायद वो आप बिल्कुल वो मिस होगी बात कि ये एक प्रोजेक्टर होगा क्लासरूम में, प्रोजेक्टर होगा, बच्चा क्यूब उसके नीचे रखेगा और वो एक वर्ड फॉर्मेट बनेगा, वो कैट होगी तो वो उसको कैट उसके ऊपर जो है प्रोजेक्शन आएगी। और आप कह रहे हैं सिंपल प्रोजेक्टर से काम चल जाएगा? सिंपल मोबाइल आप हम बच्चे को देंगे तो वो तो हमसे मोबाइल रोटेट हो रहा है, क्योंकि वो अब क्या कर रहा है, उसके एक्सिस ले रहा है, एक्स वाई जो है उसके मुताबिक वो वर्ड इमेज को गेट कर रहा है, उसकी फॉर्मेशन बना रहा है। It's the projector. Help me understand that. It's a प्रोजेक्टर होगा, स्क्रीन एक अलग होगी, प्रोजेक्टर कैमरा से वो देखता है। मतलब सर एक मोबाइल है जो कि आपके इसमें डिटेक्ट कर रहा है, ठीक है, वो कनेक्टेड है प्रोजेक्टर के साथ। प्रोजेक्टर जो अपनी प्रोजेक्शन कर रहा है वो उन लेटर्स के ऊपर कर रहा है, ठीक है। आप जैसी इन्फॉर्मेशन बनी वो प्रोजेक्टर उनके ऊपर मॉडल लेकर आएगा। सो मोबाइल चाहिए मोबाइल चाहिए क्योंकि सर कैमरा बच्चे को आपने कॉन्ट्रडिक्ट कर दिया अपनी बात से। मैं कह रहा हूँ बड़ी स्क्रीन, वो कह रहे हैं मोबाइल। कॉन्ट्रडिक्शन है सच वो नहीं है, मतलब मोबाइल में लास्ट दिखाने के लिए। You're not making sense here. If you say Kinect is there, I'll buy that. But if you'll say प्रोजेक्टर लगा हुआ है, सिंपल प्रोजेक्टर है तो मोबाइल पे चलाने कोई इशू नहीं। हम ये कह रहे हैं आप मोबाइल प्ले स्टोर पे एप्लीकेशन है वहां डाउनलोड करें, वहां से यूज करें। एक सेकंड, I want to stop you here. Which one of you should I argue with? Because both of you are on different page. अब मैं बताता हूँ। Should I go with you? I'm going to ask you a question. बिल्कुल पूछें। ऊपर प्रोजेक्टर लगा हुआ है, ठीक हो गया। एग्रीड, ठीक हो गया। कैमरा कहाँ पे? सर उसी के साथ में, प्रोजेक्टर के साथ कैमरा लगा है। सो इट्स अ प्रोजेक्टर प्लस कैमरा, एक कैमरा। दिस इज इट मींस इट्स अ कस्टमाइज्ड डिवाइस दैट यू आर बिल्डिंग। बिल्कुल। अब आप आ रहे हैं वो सर, अब दो चीजें हैं जो आप कह रहे थे कि हम कंट्राडिक्ट कर रहे हैं। वो क्यों कि मैं बात कर रहा हूँ क्लासरूम की, ये बात कर रहे हैं कि आप खुद वो कर लेंगे। लीव दैट, आई एम गोना गो विद यू। क्लास की है, वो क्लास में स्टूडेंट एक आएगा, मिस काम दिया मिस ने, मतलब एप्पल बताया, तो वो उसके नीचे आएगा और वो सारा। एक सिंपल कैमरा जो है वो कैसे डिटेक्ट करके सारी प्रोसेसिंग करेगा? वो मतलब कोई डिवाइस आप IoT डिवाइस कनेक्ट कर रहे हैं, वो आपने कहीं मेंशन की हुई इधर? तो व्हाई आर यू पिचिंग? देखिए वो the thing that you are saying makes sense. It's just that the calculation on financial which would be required on that part, it's a customized device that you are building. It's a very novel idea that the children are sitting and each one of them is playing with blocks and whatever blocks are there वो उसको process कर रहा है। And that is where the complexity is going to come कि अगर 4 बच्चे इस ब्लॉक के गिर्द बैठे हुए ना और वो खेल रहे हैं तो वो ऊपर कंफ्यूज हो रहा होगा बिकॉज हर एक का पैटर्न मिसमैच होना शुरू हो जाएगा। These are the things we want you to solve. That is again you have to work it out. Suppose करें ये जो एरिया इस पे एक प्रोजेक्टर लगा हुआ है तो 4 children can sit on each side. Each one of them can play with the blocks. You would not be able to provide 4 different processors to each. हर बच्चे के पास अपना एक वो प्रोजेक्टर होगा, किसी के पास अपना एक प्रोजेक्टर होगा, हर स्टूडेंट के पास अपना एक हर एक बच्चे के पास अपना प्रोजेक्टर होगा। Do not do that. Okay. Very expensive. Do not do that. ठीक हो गया। वो It's a thing. I'm great. I'm glad कि on runtime you threw an idea. ठीक हो गया। You came on the floor with mobile app. Runtime पे you thought of something, you threw it. But sometimes this can be very dangerous. Work it out, but this can work. और सिंपल प्रोजेक्टर से आपका होगा भी नहीं तो you have to buy 3D। मोबाइल पे आपने जो एप्लीकेशन मोबाइल पे ठीक है सर, चलिए ठीक है। वैसे हमारा जो आगे जाके इसको कस्टमाइजेबिलिटी मतलब वो करने का था, वो यही, ऐसे नहीं कि मैं मतलब यहाँ पर आगे थ्रू तो नहीं किया कि मेरा ये प्रॉपर हमारा ये आइडिया था कि इसको हमने आगे जो करना है, मोबाइल एप्लीकेशन एक बन गई, डिटेक्शन हो रही, फॉर्मेशन हो रही, वो बता रहा है, मॉडल आ रहा है, सारा कुछ। अब वो आगे जाके जब हम इनको आगे, क्योंकि मैंने स्कूल की बात की है, What if आप प्रोजेक्टर को छोड़ दें, आप मोबाइल ऐप के अंदर क्या कर लें, स्टेजेस वगैरह ऐड कर लें और मतलब एक्टिविटीज ऐड कर लें। बिल्कुल। तो अगर उस तक रहें, क्योंकि आप इतना टाइम तो है नहीं, अगर आप फॉर क्वालिफाई कर रहे हैं इमेजिन कप के लिए, तो इतने टाइम में आप कैसे कंप्लीट करेंगे? One of the things I would want you to do is ये जो पर्टिकुलर एस्पेक्ट है ना हार्डवेयर का, उसके फाइनेंशियल्स, हाउ यू आर गोना सेट इट अप, मे बी अ डायग्राम ऑफ इट, if possible meet me afterwards. Okay, this whole thing is over. Otherwise go see one of your but once you have done the evaluation, either see Ghost
touch base with some of the mentors or seniors and talk to them कि how should this be orchestrated, but that's all from our side. ठीक हो गया. Anything? No. Just one question. आपने जो ऐप दिखाई है इसमें जो कैट आई थी वो 3D मॉडल. बिल्कुल. तो आपका प्रोजेक्टर भी 3D मॉडल करेगा? 3D प्रोजेक्शन करेगा? The first question I'm trying to ask. वहाँ पर अब जब सिंपल प्रोजेक्टिंग भी प्रोजेक्टिंग करता है ना, कोई भी प्रोजेक्टर सिंपल भी जो वो जब प्रोजेक्शन करता है वो ऐसे लगता है 3D ही है. जैसे मोबाइल में आपको लग रहा है ना वो 3D है, वो 3D ही फील होगी. नहीं, मुझे नहीं ना लगता, मुझे वो 2D ही लगता है. नहीं, जब आप जिस मोबाइल में आपको 3D लग रहा है ना. Try to understand the question. 3D के अलग प्रोजेक्टर होते हैं. They can project. Trying to understand if the mobile version of the app and the projection version of the app are going to behave the same or are they different? ठीक है. सर तो वो जब मोबाइल के ठीक है. अच्छा. So आप बाकी ये किसमें क्या डॉक्यूमेंटेशन, डिजाइनिंग, फोटोशॉप वगैरह सारा. 3D मॉडलिंग. जी. डेटाबेस में जो दूसरे ट्रैकेबल बिफोर है उसको बना रहे हैं. टूल कौन सा आपने यूज़ किया? मैं फोटोशॉप और इलस्ट्रेटर. फोटोशॉप में आपने 3D मॉडल बनाया. 3D मॉडल ही बनाया. ये सर ये जो ट्रैकेबल ABCD. अच्छा, ये बेसिकली डिजाइन करने पर वेक्टर्स डिजाइन किया. मुझे एनिमल्स खुद ड्रॉ किए आप? वो मॉडल वॉइसेस जो हैं वो भी इंटरनेट से चल रहे हैं. वो भी इंटरनेट से. ठीक हो गया. ठीक है. थैंक यू. Let's talk afterwards. ठीक हो गया. Thank you. जरूर. ओके. थैंक यू. That was Team AR with us. That was actually great. Now we're going to be heading on to the judges. Right. So, Mr. Smansik, actually, we haven't had an interaction. So, for my question would be for you today. Actually, what do you want? This is it project. What is actually the definition of your that this is it project? सर फर्स्टली एक तो ये कि जो मेंशन कर रहे हैं वो अपनी रिक्वायरमेंट के अंदर क्या उसको फुलफिल कर रहे हैं, जो उनका आइडिया है. देखें, प्रॉब्लम स्टेटमेंट कुछ है जो अभी कुछ प्रोजेक्ट्स में हमने जज किया है कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट बहुत अच्छी है, लेकिन जो सोल्यूशन है वो अकोमोडेट नहीं कर रहा उस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को, या उसके ऊपर नहीं आ रहा. तो एक तो यह है कि फर्स्टली दे स्टिक टू देयर प्लान और हमें उसके कुछ रिलेटेड कोई चीज़ डेमोन्स्ट्रेट कर दें, क्योंकि ये है कि हमारे पास टाइम भी बहुत कम है आगे रीजनल के लिए भी, और रीजनल तो ख़त्म हो गया, आगे फाइनल राउंड के लिए. तो कितनी देर में वो कंप्लीट हो सकता है उनका आइडिया कि नहीं हो सकता. सो व्हाट माय पर्सपेक्टिव वुड बी कि कितना कंप्लीट, कितनी जल्दी वो कर सकते हैं उसको, अ वीक में और 2 में और मंथ में. तो ये मेरी तरफ से होगा इनपुट. Can you tell actually what is your favorite technology actually? What do you want your best project में क्या चीज़ हुआ है? Well, इट टोटली डिपेंड्स ऑन आइडिया कि उनका आइडिया क्या है. व्हाट माय पर्सपेक्टिव वुड बी कि लाइक क्लाउड की कोई ना कोई चीज़, चूँकि आजकल जो ट्रेंड चल रहा है उसके ऊपर, या काफ़ी प्रोजेक्ट्स भी आए हैं मशीन लर्निंग के ऊपर भी, तो ज़बरदस्त है कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करें, क्योंकि ओल्ड टेक्नोलॉजीज़ को ऑलरेडी इमेजिन कप के अंदर फोकस कर चुके हैं. तो जो अभी करंटली ट्रेंड चल रहा है सॉर्ट ऑफ, अभी ब्लॉकचेन का कोई नहीं आया हमारे पास इस किस्म का, तो वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा अगर ब्लॉकचेन को या IoT का एक आया है. तो अच्छा है कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को अगर फोकस करें, क्योंकि अगर हमने इंटरनेशनल को कम्पीट करना है तो उधर जाके तो वो पिछले वाले ऑलरेडी कर चुके हैं टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर काम. Okay. That is actually a very good perspective. Thank you, sir. And let me tell you guys that we are live on the Higher Education TV, and Umar Aftab will be telling you the link. So actually, you can go to the link edutv.hec.gov. Actually, this is actually the link. आप यहाँ जाके यहाँ पे जो live transmission हो रही है, you can actually see that, and you can download it as well. So. And we are basically thankful to the chairman of HEC for organizing Microsoft Imagine Cup 2019 in Lahore Garrison University. So actually, he have been very generous, right? Yes, he did, exactly. So, again, I'm going to tell you that you can see that the EDU TV of Higher Education Commission, you can actually see every single thing, the regional finals of Punjab, the regional final of Karachi, the regional final of Quetta, as well as the regional final of Islamabad. So you can actually access and watch all of the videos, what's going on, and what is going to be happening. You can also see the news. So, we should probably go to the next part. To the next team. So, calling on the next team, we have our team actually that is Optimus Developers. Right. So, Optimus Developer. Actually, I'm very curious about you. Yeah, it's a bit different. So, I'm curious too, actually. So, we should probably give you my. Yes. Best of luck for your project. Assalamu alaikum.
Assalamu alaikum. My name is Zain Ali and here's my member Awais Razak. We are here to present our project which name is SpyLive. SpyLive is an application which will help parents to monitor their children and for companies to monitor their employees. So why we are going to develop this project? There is some problems. So the basically problem nowadays, every child under 15 or under 18, more than 3 or 4 years, know how to use a mobile, how to open YouTube, how to open Chrome, how to unlock the mobiles. That's the basic problem. We just find out that children know how to use mobiles. So second problem is if your children got lost or your children's mobiles got lost, your mobile got lost, you didn't find that where your mobile has been, and do you want to find out that in which company did your son is in bad society, your children got indulged into a bad society, or what your children is doing on his mobile, and to find out company, and the company can find out how company knows that where their employees go during their office time. So our solution is to develop the hidden application which will be installed on the device, which will have to monitor पाकिस्तान में आला तालीम और तहकीक के शोबाजात की तरक्की और फरोग के लिए आला तालीमी इदारों और स्कॉलर्स HSC एंड माइक्रोसॉफ्ट।